Honorable LG has arrived. At the back, please, you can take your seats. This event is also being live telecasted by DD Kashir, covering the entire country and Asian countries, along with 30 other countries across the world. I request everyone to please stand up. Kindly play the national anthem. Thank you.
Thank you. Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State, Ministry of Development of Northeastern Region and Prime Minister's Office, Minister of State Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor, UT of Jammu and Kashmir, Shri Sanjay Singh, Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Shri Arun Kumar Mehta, Chief Secretary, Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri V. Srinivas, Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Shri N.B.S. Rajput, Joint Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, learned delegates, esteemed officers, ladies and gentlemen, a very warm and pleasant good afternoon. Today we feel privileged to welcome this august gathering on behalf of Government of J&K. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances, in collaboration with Union Territory of Jammu and Kashmir, is organizing this two-day regional Sanjay sir, Secretary DARPG, he has also joined us. On various innovative practices of their regions. The objective is to bring national and state level organizations on the same platform to share best practices in diverse areas. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritangamaya. Lead us from unreal to real. Lead us from darkness to the light. Lead us from the fear of death to knowledge of immortality. So now I request the chief guest of the occasion and all the esteemed dignitaries on the dais to kindly proceed for lighting the ceremonial lamp and mark the beginning of this auspicious event. सेंटर माइक प्लीज ऑफ कर दीजिए पीछे से ऑफ नहीं हो रहा यहाँ से May I now request Shri Dheeraj Gupta, Principal Secretary, Housing and Urban Development Department, to welcome the Chief Guest, Dr. Jitendra Singh, by presenting a bouquet and a shawl. I request Shri V. Srinivas, Additional Secretary, DARPG, to present bouquet and a shawl to Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir. I now request Shri Saurabh Bhagat, Director General, J&K IMPARD, to welcome Shri Sanjay Singh, Secretary, Administrative Reforms and Public Grievances.
I now invite Shri Satish Yadav, Director DARPG, to felicitate Shri Arun Kumar Mehta, Chief Secretary, Union Territory of Jammu and Kashmir. I now invite Professor Eva Sharma, Director Trainings, Impart Jammu, to welcome Shri V. Srinivas, Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances. I request Professor Mushtaq Khan, Director Trainings, Impart Srinagar, and Ms. Priyanka Bhatt, Joint Director, J&K Impart, to present shawl and bouquet to Shri NBS Rajput, Joint Secretary, Administrative Reforms and Public Grievances. May I now request Shri V. Srinivas, Additional Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, and the Director General, National Center for Good Governance, to kindly address the gathering. A senior administrator, very able academician, and a dynamic leader, Sir is an officer of 1989 batch of the Indian Administrative Service from Rajasthan cadre. I request you, sir, to formally welcome the chief guests, dignitaries, and the delegates. Respected Minister of State for Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jiten Singh Ji, Honorable Lieutenant Governor of Jammu Kashmir, Shri Manoj Sinha Ji, Shri S.K. Singh Ji, Secretary DRPG, Shri Arun Mehta Ji, Chief Secretary, Government of Jammu Kashmir, Shri N.B.S. Rajput, Joint Secretary DRPG, senior officials of the Government of Jammu Kashmir, Government of India, representatives from the state governments of 10 states, speakers, chairpersons participating in this conference. It gives me immense pleasure to welcome Dr. Jiten Singh Ji, Honorable Minister of State in the Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Minister of State, Independent Charge, Department of Northeastern Region, to the inaugural function of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances Regional Conference on Replication of Good Governance Practices at Srinagar. Over the past 3 years that I have served in DARPG, Dr. Jiten Singh Ji has consistently encouraged the department to collaborate with central ministries, state governments, district collectors, and ensure dissemination of best practices in administrative excellence through regional conferences. As India's longest-serving Minister of State in the Personnel, PG and Pensions Department, and as an academician and Aimsonian, Dr. Jiten Singh Ji has successfully adopted the best principles of good governance and promoted cross-sectoral exchanges of ideas on administrative reforms. He has successfully ushered in a series of long-awaited civil service reforms and new public management practices. Dr. Jiten Singh Ji's leadership enabled transformation of India's grievance redressal systems, promoted e-governance through adoption of technology platforms, increased efficiency in decision-making by creating a digital central secretariat that adopted e-office, placing comparative data in public domain in the form of a good governance index and the National E-Services Delivery Assessment, fostering improved work culture and time management practices. Dr. Jiten Singh Ji was instrumental in the launching of Mission Karma Yogi, National Capacity Building Commission, National Recruitment Agency, institution building at the National Center for Good Governance, the Indian Institute of Public Administration, and of course the massive changes that have been seen in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. He has placed tremendous focus on strengthening grassroots level innovations and institutions, interacting with district collectors of aspirational districts on good governance practices in a pandemic. Welcome, sir. I take this opportunity to welcome Shri Manoj Sinha Ji, the Honorable Lieutenant Governor of the Government of Jammu Kashmir, to the inaugural function. I did have the privilege of receiving Shri Manoj Sinha Ji when he served as Telecom Minister in the Government of India, when he had graced the AIMS Convocation Day celebrations and released the Diamond Jubilee stamp of AIMS.
His seminal leadership in pursuing administrative reforms and citizen-centric governance was witnessed in the revamp of the JK iGrams, which was commenced on a pilot basis in the districts of Jammu, Srinagar and Riyasi and was scaled up rapidly across 20 districts of the Union Territory, mapping thousands of grievance officers, representing the first such integration in the country. The successful implementation of the JK iGrams with feedback call centers and reforms and citizen interaction has been widely acknowledged as a major administrative reform in government. The Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions recommended the JK iGrams for pan-India replication. The DARPG has curated a special session on administrative innovations of Government of Jammu Kashmir, which my dear friend Sri Atal Dalu would be chairing, in which a number of innovations will be presented by senior officers of the Government of Jammu Kashmir. I extend a warm and hearty welcome to Sri S.K. Singh Ji, Secretary DARPG, Sri Arun Kumar Mehta Ji, Chief Secretary, Government of Jammu Kashmir, and Sri N.B.S. Rajput, Joint Secretary DARPG, to the inaugural session. Sri S.K. Singh Ji has in fact assumed charge of Secretary DARPG today, and it's the best possible start to his tenure with the department. Sri Arun Mehta Ji has been a pillar of support for the entire event, and several of our past collaborations have been immensely successful. This regional conference would not have been possible but for the immense support and guidance received from you. On behalf of the Government of India, I extend a warm welcome to all the 25 distinguished speakers from central ministries, state governments, and district collectors who will be presenting their papers, chairing sessions in this regional conference. In fact, we have the privilege of hosting DC Changlang from Arunachal Pradesh and DC Golpara from Assam in this conference. The Srinagar Regional Conference is being attended by nearly 400 officials from the Government of Jammu Kashmir, 250 officials from state government, and 100 officials from DARPG. In all, about 750 officials are participating in this event. Your presence and participation is symbolic of the government's relentless pursuit for excellence in governance. The regional conference represents the largest of the 5 conferences that the DARPG has conducted in collaboration with the Government of Jammu Kashmir since August 2019. This is also the first time that the DARPG is conducting a regional conference in semi-virtual mode, and I acknowledge the unstinting support from the Chief Secretary, the Principal Secretary to the Lieutenant Governor, the Secretary GAD, the Principal Secretary Housing, the DG Impad, and my good friends Sri Atal Dalu and Sri Rohit Kansal, and the entire team of the Government of Jammu Kashmir in making this event possible. I'd also like to acknowledge the contributions of Sri N.B.S. Rajput and Sri Satish Jadhav for this event. The theme of the regional conference is administrative reforms, and the nation's best reforms are being presented in this conference. We look forward to a constructive and cordial discussions over the next 2 days. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now I invite Sri Arun Kumar Mehta, Chief Secretary, Union Territory of Jammu and Kashmir, to address the gathering. Sir is a 1988 batch IAS officer. He has worked with utmost proficiency in the administration at different levels like Financial Commissioner, Administrative Secretary, Power Development Department, Managing Director, J&K SRTC, and in the central government as Additional Secretary in the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and Joint Secretary, Ministry of Urban Development. I request you, sir, to kindly enlighten us with your words of wisdom, please. Honorable Dr. Jitendra Singh, Sahab, MOS Personnel, PG and Pension, Honorable Lieutenant Governor Sahab, Sri Sanjay Singh, Secretary ARPG, Mr. V. Srinivas, and Mr. N.B.S. Rajput, Atal Dalu Sahab, ACS, Principal Secretaries and Senior Secretaries, Chairman J&K Bank, and all the participants present here. It's a huge privilege for me to be here and address this very important event. I think when we talk about governance, good governance, I think the fundamental thing is governance is about good governance. It's certainly not about misgovernance. So to me, governance and good governance means the same thing. And it's critically important to ensure that we get it right. And that's very, very important.
One of the axioms that Honorable Prime Minister gave was that we should look for minimum government and maximum governance. And this is a goal that we need to fulfill. In context of J&K, this idea has a very important connotation. We are a very bloated government. We have almost 4 lakh serving employees, 1 lakh so-called daily wages. That makes it 5 lakhs. The actual sanctioned strength is much more. And in a population of 1 crore 30 lakh, if you have such a large number of government employees, they can be an asset, they can be a liability, depending upon what kind of work we are able to take from them. And so getting this size of the government right is critically important. Up to an optimum size, they are a service to people. Beyond an optimal size, they become a problem. So one of the critical objectives we have going forward is to undertake a manpower audit and ensure that the personnel that we have are deployed properly and gainfully. And we would request DARPG that if they can help us in this matter, it will be a great thing to happen. The second point that I would like to make is that you deliver what you measure. If you don't measure, you don't deliver. It's as simple as that. There can be a district in which a deputy commissioner hasn't implemented half the plan and he can get away with outstanding. Again, another person who has delivered all the plan and gets a poor. So anecdotal assessment of reality is not the greatest way of delivering good governance. And I think evaluation framework to assess what is the real ground delivery is critically important. And I would request DARPG to help us. I have already requested planning department in our government to work that out, but if there can be a collaboration, it will be a great thing to happen. One of the problems we find when we talk about good governance and innovations, please understand that if you have a strength of 5 lakh people, there is an inertia. Too many innovations without sustainability of those innovations is not the way forward. It takes time for anything to get grounded, and we must be mindful of what we are trying to do to ensure that what we call innovation sustains beyond the person. It's critically important. I would like to say a few things about steps that we have taken about good governance in J&K, and I think that is important because many people feel that J&K mein kya hota hai, kuch nahi hota hai. I think it's important for us to understand that J&K is not the same J&K as we think it was. There is a huge change, and that change needs to be noted for in the context of good governance. And I'll just mention few of them because I think it's important. I would like to also say that these changes have been possible because of the officers here and the officials here. Without them, it wouldn't have been possible. But the speed of changes is remarkable. This is a place where I heard this argument that tender hoga to time lagega. इसलिए हम tender नहीं करेंगे. So the culture was no tendering. In the space of 2019, we became a UT, and now there is not a single work which happens without tender, and that to e-tender. Speed of work I'm talking about. 2018 and prior, you will have find no record of what was completed. But 2018-19 is the first record we have documented. We completed 8,000 projects, approximately 8,100. In the last year, despite COVID, we have completed double the amount of projects. So instead of 8,000, we have completed 16,000 projects. And how has this happened? Because there were 3 things we implemented. We made it mandatory that without administrative approval, you will not execute a project. Secondly, we said that without e-tendering, you will not execute a project. And third, technical sanction. So it binded people. And the result is very much there to see. The argument that if you do all this, this prevents early execution of work was completely wrong. And I think this needs to be documented that how implementing simple things leads to big results. And we have reports from our intelligence agencies and many other agencies that actually works are happening on the ground. But more importantly, all this is documented. It is there on the website. So when we talk about 16,000 projects, geotag photographs of those are available on the finance website. It's the first time you are seeing that all the executed projects are there in the public domain, and you can actually see it. I haven't received any complaint that these works have not been completed properly. So the simple point was making that this is simple governance, that you get the transparency right,
do exactly what is written in the law to do, because that law is passed by our honorable people's representative. It's our duty to follow that. The second point I would like to mention about e-office. Under the leadership of Honorable Lieutenant Governor Saab, we have implemented e-office. Initially, when we implemented in the Secretariat, there was a feeling that how can we implement this so fast? Now, it has got implemented. We all do e-office. This has led us to do away with the culture of Darbar move. Darbar move, we used to lose at least 1.5 months per year during the movement. We used to lose files, apart from 200 crore, that is direct savings, and then many hundred crores of indirect saving. And it is working smoothly. What it has enabled us, that anybody who is not working can be found out. So if a person is holding on to files, he can be found out. E-governance has led to huge improvement in the way we work here in J&K, and that's another point that probably needs to be noted. A third innovation that has happened in J&K, we implemented BEAMS. Many of you who are in other states or UTs would know that there's something called a budget estimation and allocation monitoring system. Through BEAMS, all the resources flow online. So it goes up to the right to the DDO online. What it enabled us, that all payments were made digital. Now today, not a single cash payment is made, not a single check payment is made. And it is made on the basis of a system called PACES. PACES is a digital system. What it does, if you have not done your AA, if you have not e-tendered, you have not attached a geotag photograph as an evidence, it won't pay it. So every payment is now based on evidence of need for payment. And that has happened in a very short period of time. So there's another innovation that we have implemented here, which is helping things to improve. Another point I would like to make is empowerment. Is basically enabling monitoring people's oversight of works under execution for meaningful empowerment. So meaningful transparency. What it does, that every single work that has been approved is in public domain. You can search it by block, village, and the town and the ward. So if you want to search it, you can search it. Today, all we need to do is to type Google empowerment, J&K, finance, and you will get there. It's open. And everybody in the citizens can see that what work is being executed for them. What resources have gone. So today the contractors have this ability of saying to the DDO that who are you to stop our payment? I have got this much resource flow, you will have to make the payment. That's a huge change in the way we work. As I told you, that we also have introduced something called delay statements. Honorable LG Saab sees it every month. If a DDO is holding on to a payment of any person, then we submit a report to Honorable LG, and we ensure that they are held to account and it's not left to them what they would do. As I said, for every payment, geotag photograph are necessary. But I think one innovation which Honorable LG Saab inaugurated very recently takes the level of transparency one step further. In housing and urban development, they have introduced the file can be shown to the person whose case is being processed. He has the ability to say that this is not the way to, if he has any point to make, he can make that point. He will get a SMS, he can look at what is being suggested for him, and he gets this opportunity to comment upon the processing twice before it is finalized. I think that is the pinnacle of transparency, and this is what we are doing now. JKIDFC, many of you would have heard about it. This is rated as one of the best practices in NITI Aayog, according to NITI Aayog. Now in JKIDFC, they Google Earth they use. They look at the situation, say 6 months back and now, and they see whether the change is there. And based on that, they make the payment. So what I'm trying to say that J&K is changing. It's not the same J&K as people stereotype thinking that nothing happens in J&K. Today, every penny is accounted for. But I think these historical changes would not have been possible without the support of Honorable LG and MOS. And it is through their support that this absolutely phenomenal changes are taking place. We are poised for actually achieving good governance. To a very large extent, we are doing that. But three things I would like to request DARPG. One is that evaluation framework for the districts. We have a district plan for the historically, this is the first time we have implemented 73rd and 74th, and plan worth 12,600 crores has been developed in collaboration with people, one of the hallmarks of good governance.
So if we can develop an evaluation framework, and our framework is normally not more than 1 month, so we would expect you to do that. And second point is that we want every single senior officer to be trained and regularly. And I would request IMPARD to collaborate so that without training, it's not possible that everybody is aware about what is actually required. And third thing is departmental assessment as well, not only districts, but departmental assessment. I think those will go a huge and a long way in improving governance. Actually, J&K, all the union ministers, Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, our Honorable LG, everybody is so keen that we provide good governance in real terms, and that is what we intend doing. And our team is ready to embark upon this journey of good governance. So if there was ever a time to actually implement good governance in J&K, this is now, and it is happening. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your valuable insights with us. It gives us immense pleasure to welcome Shri Sanjay Singh, Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Sir is a senior IAS officer of 1987 batch from Madhya Pradesh cadre. I request you, sir, to kindly enlighten us with your address, please. माननीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी, महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अरुण मेहता जी, मेरे सहयोगी श्रीनिवास जी, राजपूत जी, इस सभा कक्ष में बैठे सभी वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर शासन के अन्य महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे साथ में 10 राज्य जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन सब के जो अधिकारी एवं साथी जुड़े हुए हैं, उन सबको अभिनंदन। मैंने आज ही इस विभाग का कार्यभार ग्रहण किया है और मेरा ये पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं इस विभाग की ओर से सम्मिलित हो रहा हूं। तो उस दृष्टि से जो इससे पूर्व में हुआ है उसके बारे में भले ही जानकारी न हो, मगर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, क्योंकि हम लोग 33-34 वर्ष से प्रशासन से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, सुशासन की ओर विभिन्न महत्वपूर्ण कदम, बहुत से सिस्टम्स डेवलप किए हैं और बहुत से सिस्टम्स को उपयोग किया है। तो उस नजरिए से मैं कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। जो हमारा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवेंसेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसमें हम जो बहुत से सुशासन के जो एप्लीकेशंस विभाग के द्वारा डेवलप की जाती है, वो उसके उपयोग करते हैं, उसे हम जो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की होती है, पूर्व से ही उन्हें हम रिकॉग्नाइज करते रहे हैं, पहचान उनकी करते रहे हैं, उन्हें अवार्ड करते रहेंगे। उस दृष्टि से हमारे पास में एक बहुत अच्छा डॉजियर, एक बहुत अच्छी डायरेक्टरी उपलब्ध है कि जहां से हमें अच्छी चीजें निकाली जा सकती हैं और समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग जो राज्यों ने किए हैं, जिलों ने किए हैं, तो वो हमारे नजर में आते रहते हैं और बहुत उल्लेखनीय कार्य उस नजरिए से हुआ। बस कुछ एक बातें हैं जो एक व्यक्ति जिसने कि उपयोग किया है इनका और शुरू से ही जो सिस्टम डेवलपमेंट की ओर हमने किया, जो कार्य किया है, उसकी ओर मैं रखना चाहूंगा कि हमारे जो सुशासन के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, वो डायरेक्टेड किसकी ओर होती हैं? सरकार की ओर होती हैं। सरकारी तंत्र को हम व्यवस्थित करें, बेहतर करें और उसमें क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करें, स्पीडी डिसीजन मेकिंग उसके भीतर लाए। एक तो हो गया सरकार के लिए। दूसरी बात हो गई फिर हमारी ट्रांसपेरेंसी की ओर हमने क्या क्या चीजें उसमें जोड़ी हुई है।
और तीसरी है जो कि सर्विस डिलीवरी से जो सम्मिलित से प्रेरित जो होते हैं, सर्विस डिलीवरी किस प्रकार की दी जा रही है। और चौथा है कि किस प्रकार से स्टेक होल्डर्स जो जानकारी हमारे पास में उपलब्ध है उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो इन चार हम कहें कि डायमेंशन में हमारे सुशासन के जितने भी कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। और ये सब के पीछे एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हम जो सुशासन का जो भी एक एप्लीकेशन डेवलप किए उसका हमारा मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब चीजें उस उद्देश्य की तरफ ही डायरेक्ट होनी चाहिए। कि जैसे हम कहेंगे अगर हमारा उद्देश्य है और ये कहेंगे कि जो एक एप्लीकेशन जो है वो ये नहीं कि केवल सरकारी तंत्र के लिए ही है, उसमें और लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी इस प्रकार की एप्लीकेशन है उनमें एक इकोसिस्टम अप्रोच बहुत आवश्यक है कि जिसमें हम कहें कि सिटीजन है उन्हें हमारे से जानकारी कोई चाहिए, तो जानकारी हम किस प्रकार से उपलब्ध करा रहे हैं, क्या जानकारी हमारी अपडेटेड है और ऐसे है कि इजीली एक्सेसिबल है। तो ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि हम नियम कानून रूल्स रेगुलेशन बदलते रहते हैं, बहुत नई चीजें उसमें लाते रहते हैं, मगर उनका एक्सेस सिटीजन्स के लिए हमारे लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि हम ढूंढे कहां पर वो उपलब्ध है। और सुशासन के बारे में हम सब लोग देखते ही हैं कि आईटी का जिस प्रकार से उपयोग हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि अभी जो आईटी का जैसे हम जानकारी देने की दिशा में जो हमारे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो भी व्यवस्था है वो फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड जनरेशन हम कहें कि उसमें अब जाने की जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि जो हमारी एप्लीकेशन में उसमें एआर लाने की जरूरत है, ऑगमेंटेड रियलिटी लाने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस दृष्टि से जैसे हमारी सारी जानकारी, हम ई ऑफिस का ही अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण एक उल्लेखनीय केंद्र शासन का एक एप्लीकेशन है जो हम सब उपयोग कर रहे हैं। और कोविड के दरमियान हम सब ने देखा है कितना उपयोगी रहा, किस प्रकार से हम दफ्तर में ना रहते हुए भी हम लोगों ने सही समय पर सही निर्णय हम ले पाए और पूरी व्यवस्था सही प्रकार से चलती रही। तो इसमें जैसे हम कहें कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स के बारे में, और मैं जम्मू कश्मीर माननीय उपराज्यपाल जी यहाँ पर हमारे मध्य उपस्थित हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस दिशा में अगर हम आपकी ओर से ही कुछ डेवलपमेंट आए, जैसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टि से मेरा क्या कहना चाह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारी रिपोजिटरी नॉलेज उपलब्ध रहती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये और उपलब्ध हो जाए कि पुराना उस संबंध में प्रेसिडेंट्स क्या क्या है, पूर्व में जो निर्णय हुए हैं किस किस प्रकार के निर्णय हुए हैं, तो भविष्य के जो निर्णय होंगे, आज के वर्तमान में जो निर्णय होंगे, उन्हें लेने में और हमें सहायता प्राप्त हो जाएगी। और एआई से हम कहें कि अभी जो सर्च है, एआई के जरिए अनस्ट्रक्चर्ड सर्च हम कर सकते हैं कि उसमें जो हम सर्च के हमारे पास में टूल्स है, अभी हम एक स्ट्रक्चर्ड सर्च के जरिए केवल वही चीजों तक हम चीजों को निकाल पाते हैं एक वेबसाइट से और एक पोर्टल से कि जो स्ट्रक्चर के रूप में हो। तो ये कुछ एक जो नए टूल हैं जो नेक्स्ट जनरेशन की ओर, क्योंकि हमारे साथ में जिले जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो वो इस ओर कदम अगर बढ़ाएंगे तो उनसे सब सीखेंगे और केंद्र शासन भी उन्हें हम देखेंगे कि कितने उपयोगी हैं, तो हम भी उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये मेरा एक जो नजरिया है। और एक और चीज मैं आपके सम्मुख जो कहना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है कि जो गुड गवर्नेंस सुशासन के संदर्भ में हमारा जो भी टूल्स अवेलेबल रहते हैं, कि हमने बहुत अच्छी कोई भी एक एप्लीकेशन डेवलप की और उसके पश्चात ये देखने में आता है कि कुछ लोग उसे सरकमवेंट कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो हम जो और डिफॉल्टर्स कहीं किसी भी दिशा में हम कहेंगे 5% से अधिक नहीं होते हैं, तो हम केवल डिफॉल्टर्स को टारगेट करने के लिए कुछ और एक लेयर लगा देते हैं, पर लेकिन उसे फॉलो तो हर एक को करना पड़ता है। तो कि ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि डिफॉल्टर्स को उस जरिए से नहीं, वो कुछ दूसरे जरिए से डील करने का की आवश्यकता होती है और वो होती भी है। तो मेरा कहना है कि जो हमारा सामान्य एक तरीका है, सामान्य जो एक यूजर्स हैं, उन्हें उनकी सहूलियत के लिए हम और हम कहीं व्यवस्था को सुदृढ़ करें। और जो केवल कभी कभी जैसे हम लोग भी करते हैं, हमने भी ये किया है कि जो जिसने डिफॉल्ट किया तो किसे हम उस चीज को और कड़ा कर दें, तो कड़ाई तो हर एक के ऊपर होगी। तो कहने का तात्पर्य तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है बहुत
उसमें बहुत कसाव आ जाता है। तो ये सब ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जबकि हम ई गवर्नेंस सिस्टम्स डेवलप कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा, मैं पुनः आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि हमारा उसका उद्देश्य क्या है। कि जैसे ई गवर्नेंस में उद्देश्य है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो, दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारा स्पीड डिसीजंस हो, तीसरा नागरिकों के लिए सही प्रकार से सही जानकारी जो वो चाहते हैं समय पर मिल सके। पर इस तरह की जो बातें, तो उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए चारों डायरेक्शन से हमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने टूल में कुछ ना कुछ व्यवस्था रखनी आवश्यक रहती है। तो यही कुछ एक बातें थी। मैंने सोचा कि हालांकि मैं विभाग में आज ही ज्वाइन किया है, मैं नया हूं, परंतु एक प्रशासक की नजरिए से कि जो हमने देखा है, जो जिस प्रकार से हमने उपयोग किया है विभिन्न आईटी टूल्स का और ई गवर्नेंस के सॉल्यूशंस का, तो मैं आपके सम्मुख में रख सकूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः मैं हमारे जो मंत्री जी हैं जितेंद्र सिंह जी, उनका अभिनंदन करता हूँ और चीफ सेक्रेटरी साहब का भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर इस आयोजन को करने का सहमति दी और ये कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। Dhanyavad, sir. Ladies and gentlemen, on this occasion, an e-magazine, Minimum Government, Maximum Governance, containing various administrative innovations is being released. Let me now take this opportunity to request Dr. Jitendra Singh, the chief guest of the occasion, to release the e-magazine, Minimum Government, Maximum Governance. I also request Honorable Lieutenant Governor to join him. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, in order to promote excellence in capacity building programs and practices relating to good governance, General Financial Rules 2017, Public-Private Partnerships and E-Procurement with focus on GEM, 2,000 senior officers will be imparted mid-career training on the same pattern of IAS training of DOPT Government of India. Being a premier administrative training institute and State Institute of Rural Development, the J&K Institute of Management, Public Administration and Rural Development is going to exchange an MOU with National Center for Good Governance. For this, may I request Shri V. Srinivas, the Director General, National Center for Good Governance, and Shri Saurabh Bhagat, Director General of J&K Institute of Management, Public Administration and Rural Development, to please come forward and exchange the Memorandum of Understanding. I also request all the esteemed dignitaries on the dais and Professor Mushtaq Khan and Professor Reva Sharma, Director Trainings in PAD, to join for MOU exchange. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to welcome the Honorable Lieutenant Governor, J&K, Shri Manoj Sinha. Shri Sinha has served as the Minister of State for Communications and Minister of State for Railways in the Government of India, an avid agriculturalist and a Master's in Civil Engineering from the prestigious Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University. Mr. Sinha is fondly called Vikas Purush for ensuring speedy growth of backward villages, which he considers a nation-building strategy. As the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, he is applying his administrative acumen and political understanding to ensure all-inclusive development-oriented governance in the region, which includes initiatives like Back to Village, E-Office, My Town, My Pride, live public grievance hearing, LG's Mulaqat, Panchayat elections, Ayushman Bharat, and many others. I request you, sir, to kindly enlighten us with your words of wisdom, please.
सम्माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, विभाग इतने ज्यादा हैं कि नाम लूंगा तो उसी में 2 मिनट चला जाएगा, इसलिए इतना ही मुझे लगता है कहना पर्याप्त है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के भारत सरकार के सचिव श्री संजय सिंह जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रमुख सचिव श्री अरुण मेहता जी, केंद्र में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री श्रीनिवास जी, मंच पर विराजमान श्री राजपूत जी, सभागार में उपस्थित भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी अधिकारी, स्पीकर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के क्षेत्र में किए गए नवान्वेषण, नई पहल और जम्मू कश्मीर में इनोवेटिव सर्विस सिस्टम को रिप्लिकेट करने एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के इस 2 दिवसीय विचार मंथन के लिए मैं श्री जितेंद्र सिंह जी को, केंद्रीय प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग को और जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव और इस पूरे कार्य योजना से जुड़े हुए अपने सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। सभी अधिकारियों एवं स्टेक होल्डर्स को कश्मीर घोषणा के जरिए की जा रही पार्टनरशिप तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे लगता है कि अगर हम गुड गवर्नेंस शब्द को खोजने की शुरुआत करेंगे तो पहली बार 1992 में इसका जिक्र हुआ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, और उसके जो 8 मुख्य सिद्धांत उस समय तय हुए, जन भागीदारी पहला था, आम सहमति दूसरी थी, जवाबदेही तीसरी थी, पारदर्शिता, उत्तरदायी प्रभावी, कुशल न्याय संगत और समावेशी शासन प्रक्रिया, ये मोटे तौर पर उस समय भूमिका रखी गई थी। और उसमें एक पंक्ति और जोड़ी गई, सुशासन का मतलब जो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तय करे और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की आवाज जो सुन सके, सभी वर्गों के लिए वर्तमान एवं भविष्य की न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर सके। मुझे लगता है कि इसी को सुशासन या गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है। 72 साल पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जब 10 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में सिविल सेवा एवं प्रशासन पर बहस हो रही थी। कुछ सदस्यों ने कुछ ऐसी टीका टिप्पणी की जो सिविल सर्विसेज तथा पुलिस सेवा के शिल्पी श्रद्धेय सरदार पटेल को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो साफगोई से बोलने के लिए जाने जाते थे। और जब वो बोलने के लिए उठे तो उन्होंने उस समय के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू की तरफ देखकर कहा कि अगर यह सभा सिविल सेवा को समाप्त करना चाहती है तो वह आज ही इन सेवाओं को अपने साथ लेकर राजनीतिक जीवन से दूर चले जाएंगे। और यह सोच लेंगे कि राष्ट्र का मत अब बदल गया है। सरदार पटेल की बात मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा। मैं संविधान सभा के रिकॉर्ड के लिए यह कहना चाहता हूं, यदि गत 2 या 3 वर्षों में सिविल सेवाओं के अधिकांश अधिकारियों ने देशभक्ति की भावना से और निष्ठा से काम न किया होता तो यह संघ समाप्त हो गया होता। यदि आप एक दक्ष अखिल भारतीय सेवा चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सिविल सेवा के अधिकारियों को स्वतंत्रता से अपनी बात कहने दीजिए और स्वतंत्रता से उन्हें काम करने दीजिए। मित्रों, ये सरदार पटेल के शब्द थे, जिनका मानना था कि निर्भीक, निष्पक्ष और शासन में जवाबदेही तथा ईमानदारी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा अत्यंत आवश्यक है। और गुड गवर्नेंस में बहुत सारे काम हुए हैं।
मुझे लगता है कि समय नहीं कि मैं उसका जिक्र करूं, लेकिन एक कहानी मैंने कभी पढ़ी थी। वहां से कहां पहुंचे हैं मुझे लगता है ज्यादा स्पष्ट होगा। एक हिंदी के व्यंग्यकार थे, उनका नाम था बिशन टंडन। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। एक हिंदी की पत्रिका मैगजीन निकलती थी सारिका, एक उसमें लेख छपा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। मैं 2 मिनट में उसको खत्म करूंगा ताकि आगे मैं अपनी बात कह सकूं। उन्होंने लेख में लिखा कि भारत सरकार बहुत चिंतित हुई कि आखिर देश का विकास कैसे किया जाए। तो जैसा सामान्य रूप से चलन है, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष और सदस्य नामित हुए। पहली बैठक में तय हुआ कि विकास कहां से शुरू किया जाए। तो फैसला हुआ कि सुदूर ग्रामीण अंचल के किसी प्राइमरी विद्यालय में चलते हैं, वहां देखते हैं, अगर शिक्षा हमने ठीक कर ली तो शायद देश को अच्छे रास्ते पर, ठीक रास्ते पर हम ले जा सकेंगे। शायद वो उत्तर प्रदेश बिहार का ही कोई प्राइमरी स्कूल रहा होगा या कहीं का मध्य प्रदेश का रहा हो। वो अध्यक्ष महोदय पहुंचे एक गांव, सुदूर गांव में। जाड़े का दिन था और प्राइमरी पाठशाला के जो प्रधानाध्यापक थे धूप का आनंद ले रहे थे चारपाई पर लेट करके। गए, उन्होंने अपना परिचय दिया, बताया। तो फिर वो सजग हुए और उन्होंने बताया कि मेरे विद्यालय में पठन पाठन बहुत अच्छा हो रहा है, अनुशासन भी बहुत उच्च कोटि का है। मैं अपने विद्यालय की सबसे ऊंची कक्षा, मैंने कक्षा 5 में आपको ले चलता हूं। लेकर के गए। वहां एक अध्यापक थे जो पढ़ा रहे थे और पढ़ाया जा रहा था सीता विवाह का प्रसंग। तो जो अध्यक्ष जी थे वो गए तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो उसने कहा, साहब मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे से पूछा, जनक का धनुष किसने तोड़ा। तो उसने कहा, मैंने नहीं तोड़ा। बारी बारी से सबने यही उत्तर दिया कि जनक का धनुष मैंने नहीं तोड़ा। फिर वो जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, साहब मैं 20 साल से यहाँ अध्यापक हूं, यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं और मैंने नहीं देखा है कि जनक का धनुष कब टूटा, किसने तोड़ा। प्रधानाध्यापक महोदय शायद बता सकते हैं। उनके पास गए, वो कहा, 30 साल से मैं हूं, अब मेरा रिटायरमेंट आने वाला है, मेरे कार्यकाल में भी कोई जनक का धनुष नहीं था। संयोग से जो रिटायर्ड प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर थे, वो भी उसी गांव के रहने वाले थे, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा, साहब मैंने भी लंबी सेवा यहाँ की, यहाँ कोई जनक का धनुष नहीं था। उनको समझ में आ गया कि अनुशासन कितना उच्च कोटि का है और पठन पाठन कैसा हो रहा है। वो वहां से वापस चले गए। जो प्रधानाध्यापक महोदय थे, हेडमास्टर साहब, उनको लगा कि ये तो बहुत जरूरी चीज है जो विद्यालय में नहीं है। तो उन्होंने एक कागज लिया और जो फाइल कहते हैं आप या नोटबुक, उन्होंने लिखा। वहां हम लोग के यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी या एजुकेशन अफसर और एक एसडीआई कहते हैं हम लोग, डिप्टी साहब उनको हिंदी में कहा जाता है। तो उन्होंने कागज पर लिखा कि महोदय, मेरे विद्यालय के जनक का धनुष खो गया है, इससे पठन पाठन में बहुत असुविधा हो रही है, कृपया अविलंब मेरे विद्यालय के लिए जनक का धनुष उपलब्ध कराएं। पहुंचा। एसडीआई साहब अक्सर दौरे पर रहते थे, 7-8-10 दिन बाद आए। कागज देखने की आदत नहीं थी, तो सामान्य रूप से इतना ही जानते थे, संस्कृति के साथ अग्रसारित, रिकमेंडेड एंड फॉरवर्ड दिल्ली के भेज दिया उन्होंने। फिर वो घूमते घामते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गया। वहां गया तो जो शिक्षा जिले के शिक्षा अधिकारी थे, हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कहा जाता है, उन्होंने देखा। फिर उन्होंने भी अपनी संस्कृति धीरे धीरे घूमते घामते वो राज्य के मुख्य सचिवालय में पहुंचे। कई महीना लग गया। जो शिक्षा सचिव थे उस प्रदेश के, उसी दिन एक बैठक से आए थे, कुछ प्रस्ताव लेकर के गए थे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का। वो स्वीकृत नहीं हुआ, बहुत दुखी थे। तो जब देखा उन्होंने तो उनको लगा कि ये बड़ा अच्छा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को लेकर जब जाऊंगा तो देखता हूं कैसे मुख्य सचिव और वित्त सचिव हमारे प्रस्ताव को खारिज करते हैं। लेकर के जाने के पहले उन्होंने पूरी तैयारी की। उन्होंने होम सेक्रेटरी से आग्रह किया कि एक डीजीपी के साथ हम बैठक करना चाहते हैं। बैठक हुई और उसमें फिर सभी थानों को निर्देश दिया गया कि इस धनुष से हिंसा भड़क सकती है, इसलिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है कि जहां जहां जनक का धनुष है सुरक्षा की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें। फिर घूमते घामते जो पहले मार्च का महीना होता है, वो मार्च महीने में फिर बैठक हुई। उसी समय बजट अलॉट होता था। तो गए,
कोई मुख्य सचिव, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव बड़े विश्वास से गए थे कि आज तो सब हो ही जाएगा। तो अंतिम फैसला ये हुआ कि प्रस्ताव बहुत समीचीन है, माने ठीक है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ये संभव नहीं, अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये प्रशासनिक व्यवस्था देश में चल रही थी और ये सामान्य रूप से उस समय जब ये लिखी गई थी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी व्यवस्था रही होगी। बदलते बदलते टेक्नोलॉजी के उपयोग से, जनता की जागृति के कारण, या मैं कहूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कारण बहुत कुछ बदला है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी लंबा फासला हमें तय करना है। और मैं जो मानता हूं कि सबसे बड़ी हमारी व्यवस्था की कमजोरी ये है कि जो अच्छे लोग काम करते हैं उनको पुरस्कृत करने का कोई इंतजाम नहीं है, और जो काम नहीं करते हैं उन्हें दंडित करने का कोई अधिकार हमारे पास मैंने प्रशासन के पास। ये व्यवस्था निष्पक्ष ढंग से हम कैसे विकसित करें, ये समय की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पर जो फैसले होते हैं, कभी कभी योग्य व्यक्ति, मुझे लगता है कि वो काफी परेशान हो जाता है। अगर इस तरह की व्यवस्था हम बना सके तो मैं मानता हूं कि जिस काम को पिछले 6-7 वर्षों में जितेंद्र सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बढ़ाया है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं जिक्र कर रहा था प्रधानमंत्री जी का, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि पिछले कुछ सालों में, आप में से बहुत लोग यहां बैठे हैं, बहुत लोग यहां नहीं हैं, आपके सीनियर्स हैं, इन लोगों ने मिलकर के जो काम किया उसकी जितनी तारीफ की जाए मैं मानता हूं वो कम है। और देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे सभी लोगों को भी जो इस सभागार में नहीं है, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस के नए पैरामीटर उन्होंने तय किए हैं। सरकारी संस्थाएं, योजना, विभिन्न कार्यक्रम, समाज कल्याण की गतिविधियां, ये सभी प्रयास प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसकी जरूरत के मुताबिक लाभ पहुंचे और आवाम यह भी देख सके कि जिन कार्यों के लिए रुपया दिया जा रहा है वह रुपया उन्हीं कार्यों पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसका जिक्र अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी ने किया है। और आज मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में पारदर्शी उत्तरदायित्व का शासन लागू करने के पीछे मेहता साहब और उनकी टीम, उनके साथी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत करके एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पंचायत में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है कि उसके गांव में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से बनाए गए प्लान या सरकारी तौर पर किए जा रहे काम में कितने पैसे आए हैं और किस काम पर खर्च हुए हैं। सब कुछ जेके बीम्स इंपावर योजना के तहत पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है ताकि हम जवाबदेह सुशासन लोगों तक पहुंचा सकें। और मैं मानता हूं कि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी लाने वाला जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी रहती है। मित्रों, ट्रांसपेरेंसी बड़ा गूढ़ शब्द है। इतिहासकार कहेंगे कि साहब यह तो 15वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा में आया, लेकिन मुझे लगता है कि गुड गवर्नेंस के लिए अगर ऐतिहासिक तथ्यों की ओर हम जाएंगे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही किया था और कहा था कि राजा की जनता के प्रति जिम्मेदारियों को समझाते हुए चाणक्य ने लिखा कि स्वयं जाकर उनकी जरूरतों के बारे में जानना, उसके लिए कार्य योजना बनाना तथा उसकी खुद निगरानी करना, यही सुशासन है। चाणक्य से पहले जन कल्याण की ही संस्कृति पर महर्षि व्यास ने जो लिखा है, राजा प्रजानाम हृदयम शरीरः, यानी प्रजा राजा का शरीर है और राजा उसके शरीर में हृदय के समान विद्यमान है। तो ये हमारी नीति, हमारी मूल भावना रही है कि समाज के हर तबके की धड़कनों को सुनना और उसके लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से जिम्मेदारी के साथ काम करना। वह जमीन पर कितना उतरता है, इस पर बड़े विचार मंथन होते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके प्रयासों में कोई कमी न रहे। और इसलिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही,
नहीं विशाल मयस्सर तो आरजू ही सही। मित्रों, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की आरजू जरूरी है। रोमन स्कॉलर सिसेरो का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मोर इज लॉस्ट बाय इनडिसीजन देन रॉन्ग डिसीजन। कभी कभी इतना समय हम लगा देते हैं कि उस निर्णय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और आप लोग जिस जिम्मेदारी की जगह पर बैठे हैं वहां अनिर्णय, अनिश्चय, असमंजस, दुविधा ये केवल शब्द नहीं है। मैं मानता हूं कि लाखों लोगों के जीवन की भाग्य रेखा को बनाने और बिगाड़ने में इसका योगदान होता है। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जिम्मेदारी की भावना हमेशा मन में प्रबल रहनी चाहिए, तब शायद हम इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। That's why it's my firm belief that the speed of decision making is critical, and subsequently our efforts should be to reduce delays in implementation process. Also, we all need to remember that behind every file, every single note, there are people. Whatever you do or decide not to do in that particular moment impacts a large section of people. So your process cannot be mechanical and has to have elements of human touch. मैं समझता हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 21वीं शताब्दी में जिसका जिक्र अभी संजय सिंह जी कर रहे थे, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, ये ऐसे टूल्स हमें मिले हैं कि ये गुड गवर्नेंस को और भी मजबूत करेंगे। और तब तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भी मुझे लगता है कि चाणक्य और महर्षि व्यास की भावना अगर हम साथ लेकर के चलेंगे तो विकास को भी गति मिलेगी, सामाजिक क्षेत्र में भी हम प्रभावशाली तरीके से काम कर सकेंगे। मैंने कार्यक्रम की डिटेल देखी है, उसमें सुबह का एक सेशन आपका बैंक आपके द्वार, मुझे सौभाग्य प्राप्त है। उस समय मैं भारत सरकार में मंत्री था, उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शुभारंभ हुआ था। आजादी के बाद और जब ये लॉन्च हुआ, बैंकों की संख्या बड़ी कम थी। ये विचार आया कि कैसे गांव-गांव तक ये बैंकिंग सुविधाएं पहुंच सकें, क्योंकि जनधन खाते, अनेक योजनाएं भारत सरकार ने जो शुरू की थी उसको लेकर के आवश्यक महसूस हो रहा था। और अब इसलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च किया गया। और केवल विश्वसनीय डाक सेवा ही नहीं बल्कि वो विश्वसनीय बैंक सेवा भी हो सके। और मैं मानता हूं कि ये बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी देश में इसके माध्यम से प्रारंभ हुई। मुझे खुशी है कि गुड गवर्नेंस के कार्यक्रम में आज इस पर विचार मंथन हो रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आधुनिक भारत, डिजिटल भारत जैसे कार्यक्रमों के जो लाभ हैं उसे विकास की कतार में खड़े अंतिम नागरिक तक पहुंचाना ये अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही निरंतर प्रगति ने एक बहुत बड़ी आबादी में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को आम जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया है। पिछले अप्रैल में एशियाई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट मैंने देखी, उसके मुताबिक 2020 में हमारे मुल्क में 25.5 बिलियन रियल टाइम ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर इसको हम देखें तो चाइना और यूएस ये दोनों से ज्यादा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो बात मेहता जी कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि सेल्फ गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ देश बढ़ रहा है और अंतिम लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। और उसका माध्यम उन्होंने जन भागीदारी, जवाबदेही तथा जिम्मेदारी, ये 3 बातों का जिक्र उन्होंने किया था। आज और कल 2 दिनों में आप जिन विषयों पर विचार मंथन करेंगे, मैं मानता हूं कि उसमें इन तीनों का समावेश होगा। 2015 में उन्होंने सीनियर अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया था, उसमें बहुत से आप लोगों के सीनियर्स भी रहे होंगे, आप में से भी कुछ साथी रहे होंगे, जिन्होंने 2016 में गुड गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में जिन 19 बिंदुओं की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की थी, मैं समझता हूं आज देश और अनेक राज्य उसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। और
और जैसा अभी जिक्र हुआ है मेरे पहले कि कोरोना महामारी के बावजूद अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाने में कामयाब हुए हैं, लोगों को मदद पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, तरक्की के नए माइलस्टोन तय कर सके हैं, तो मुझे लगता है समाज के लोगों को बेनिफिट दे सके हैं बिना किसी असुविधा के, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री जी के गुड गवर्नेंस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा था कि सभी सर्विसेज को फेसलेस, पेपरलेस बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी तय की जाए, हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाए, हर मोबाइल फोन में भारतीय भाषाओं के फीचर हों और जनधन आधार तथा मोबाइल जैम के जरिए वित्तीय समावेश हो, मोबाइल आधारित पहचान भी सुनिश्चित की जाए। आज जम्मू तथा श्रीनगर दोनों सेक्रेटेरिएट अभी मेहता जी ने जिक्र किया, ई ऑफिस के जरिए काम कर रहे हैं। 200 ट्रक फाइल लेकर के जम्मू से श्रीनगर जाते थे, श्रीनगर से जम्मू आते थे। हजारों कमरे होटलों में लिए जाते थे। मुझे लगता है कि इसी ऑफिस के कारण लंबे समय से चली आ रही ये व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। उसके विवरण आपके सामने पहले ही बताए जा चुके हैं। सभी जिलों में भी हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी सेवाओं को की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी 100% की जा सके, करप्शन पर लगाम लगाई जा सके। जेके आईग्राम्स का जिक्र श्रीनिवासन जी ने किया है, मैं उसमें ज्यादा समय में नहीं लूंगा। इसी कड़ी में हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, डीसीज और एसपीज भी लोगों से मिलने का भी काम कर रहे हैं। कोविड में ये काम बंद हो गया है। ब्लॉक दिवस जैसे कोविड ठीक होगा, इसे भी हम लोग चालू करेंगे। एलजी अवामी मुलाकात में भी लोगों की समस्याओं के समाधान की हम सब कोशिश कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस पावर्ड बाय डिजिटल गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की सर्विसेज मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों, डिजिटल लिटरेसी मिशन को हर गांव तक पहुंचाया जा सके, सभी सब्सिडी डायरेक्ट लोगों के खाते में जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके और प्रोजेक्ट को गति दी जा सके। मैं समझता हूं कि सुनिश्चित करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी निकायों को प्रभावी सर्विस डिलीवरी के लिए मजबूत किया जा रहा है। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने गवर्नेंस की एक नई इबारत लिखी थी, जब उन्होंने कहा था, जिसका जिक्र हमारे चीफ सेक्रेटरी ने किया, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। कुल 18 नए रिकमेंडेशंस ने सुशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसकी चर्चा यहां होने वाली है। उसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री जी ने रखी थी और उन्होंने गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क हम सभी के सामने रखा, उसी के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करके हम एक भारत एक और श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र हुआ है, कल इस पर चर्चा भी होगी। जम्मू कश्मीर के 2 जिले हैं, 115 जिलों में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है, उसका मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अद्वितीय उदाहरण है। हम सब भी विचार कर रहे हैं कि इसी तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स जम्मू कश्मीर में तय करके इस काम को हम लोग यहां भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माननीय जितेंद्र सिंह जी के संसदीय क्षेत्र उधमपुर में जीविका कार्यक्रम के जरिए हजारों किसानों को लाभ मिला है। मैं मानता हूं कि शासन की प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए तथा विकास की इस दौड़ में हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जरूरी है कि इस तरह की पॉलिसी पर जन भागीदारी की भावना से काम किया जाए। पॉलिसी को तराशा जाए, ये बड़ा आवश्यक है। एक मूर्तिकार का नाम आप लोग जानते हैं, माइकल एंजेलो। एक पत्थर का टुकड़ा उनको मिल गया था और उन्होंने उसे जब मूर्ति बनाई तो लोगों ने पूछा कि साहब ये कैसे किया, ये वही पत्थर है? तो उन्होंने कहा, साहब मूर्ति तो उसमें विद्यमान थी, उसी पत्थर में, मैंने थोड़ा तराश दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी जिस दिन हम तय करेंगे, एंजोला इस तरह से घबराया नहीं, खूबसूरत मूर्ति बना सकता है। मुझे लगता है कि आप सब भी, हम सब भी मिलकर के खूबसूरत मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का भी जिक्र हुआ है, उसमें भी एक खूबसूरत मूर्ति छिपी थी। दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं किया गया था। पिछले साल जो सफल चुनाव हुए हैं, मैं कह सकता हूं फ्री, फेयर और बिना एक बूंद रक्तपात के
शायद लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव भी हुए और आज फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज उन्हें उपलब्ध करा दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जिक्र हुआ 12,600 करोड़ रुपए, और उनकी चर्चा के आधार पर पंचायत, ब्लॉक, डीडीसी बृहद चर्चा के आधार पर यह प्लान बना है और पिछले साल की तुलना में दुगने से ज्यादा है। ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से बनाने की हम सबने कोशिश की है। नया काम है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन हमारी मनसा स्पष्ट है। हम ईमानदारी से इस काम को पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी विकास में आवश्यक है और गुड गवर्नेंस का इतिहास भी वही बना सकते हैं। राजेंद्र बाबू अक्सर एक बात कहते थे कि हर एक आदमी अगर दिल लगाकर सोचे और कार्यक्रमों को देखे तो ज्यादा सुधार हो सकता है, बजाय इसके कि सरकार की तरफ से उस काम को जांचने के लिए अफसर मुकर्रर किए जाए। हम जो संसाधन, जो पैसा किसी काम के तहत, किसी पॉलिसी के तहत खर्च कर रहे हैं, उसको नापने का पैमाना यही है क्या उस पैसे से, उस पॉलिसी से आम आदमी के जीवन में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। अगर मेरा मानना है फर्क तभी आएगा जब हमारी पॉलिसी सिर्फ कागज पर नहीं होकर रिस्पॉन्सिव, मॉरली करेक्ट और एक्शन ओरिएंटेड होगी। कबीर दास का एक दोहा आप सब सुने होंगे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर हमारी पॉलिसी खजूर के पेड़ की तरह बनती है तो मुझे लगता है न बने वही बेहतर है, क्योंकि खजूर से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कागज पर ढेर सारी योजनाएं बना दी जाएं, जमीन पर न उतरें, सामान्य आदमी के जीवन में उससे कोई बदलाव न हो। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि इस पर सोच विचार करके फैसला लेने की जरूरत है। कोई भी हम निर्णय करें, सोच कर करें कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या ये हम जिन लोगों के लिए बना रहे हैं उनको कोई लाभ मिलने वाला है? तो अगर ये विचार हम रखेंगे कितने लोगों की जिंदगी इससे सुधर पाएगी, मुझे लगता है कि ये इस तरह की इनोवेटिव पॉलिसी से जरूर फर्क पड़ेगा। और अनेक ऐसे कार्यक्रम यहां हुए हैं, समय नहीं है कि मैं एक का जिक्र करूं, जिससे यहां के युवा, किसान और युवतियां जुड़ी हैं। 10-11 महीने पहले वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, अनेक परिवर्तन पिछले कुछ दिनों में हुए। 70 साल की एक ऐसी लीगेसी हमें मिली थी, लेकिन फिर भी हम सब ने हिम्मत नहीं हारी और सभी परिस्थितियों का हमारे अधिकारियों ने हिम्मत के साथ मुकाबला किया और उसका परिणाम अब दिख रहा है। 2016 में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की दर 22% थी और मई 2019 में 16.3% थी, लेकिन मार्च 2021 में ये 9.5% आ गई। कोरोना की वजह से यह आंकड़ा अभी बढ़ा है और 12.1% मई की रिपोर्ट जो जून में जारी हुई है। लेकिन फिर भी मैं सभागार में कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों से हम आगे हैं इस मामले में। ये पिछले कुछ दिनों की उपलब्धि है और ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देती है, उसने ये रिपोर्ट दिया है। कई कारणों से ये हो सका है, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण मैं मानता हूं। बैक टू विलेज कार्यक्रम में जब हम सबने तय किया कि हर पंचायत में 2 युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए हम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 20,000 नौजवानों को हम आर्थिक सहायता पहुंचा सके, जिसमें 25% महिलाएं हैं, बच्चियां हैं। और इस साल का हमने लक्ष्य रखा है, इस साल 50,000 ऐसे नौजवानों को हम आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे जो अपना उद्यम खड़ा कर सकें। ये मोटे तौर पर हम लोगों ने फैसला किया है। सेवा भावना से पूरी कश्मीर की टीम, जम्मू कश्मीर की टीम काम कर रही है और मैं कहना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस के जो भी मानक हो सकते हैं, हम सब कोशिश करेंगे कि उनको यहां जमीन पर उतारा जाए। विलियम टेंडल ने जब 15वीं शताब्दी में गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया तो उसे परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा कि ईश्वर तथा इंसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें भगवान ने इंसान को
संस्थाओं को चलाने की शक्ति दी है। सो विद द स्पिरिट आई वुड सजेस्ट forget about failure. Let's start counting how many attempts we are making, which is completely aligned with the vision of administration. And in my opinion, it is high time that we move away from process-based administration to performance-based administration to bring in more efficiency in the system. मैंने कार्यक्रम की डिटेल मैंने कहा कि देखा है, बैक टू विलेज पर भी चर्चा होगी और मेहता साहब ने बहुत कम समय में अपनी बात 10 मिनट से कम समय में रखी है। मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि अब मेहता साहब खुद या कोई हमारे प्रशासन का व्यक्ति कल विस्तार से बैक टू विलेज ये केवल कहानी नहीं है, किस तरह से भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी की 54 स्कीम का पूरा सैचुरेशन किया गया है, जन भागीदारी कैसे बढ़ाई गई और अटल डुल्लू साहब यहाँ बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट मिलजुल करके हमारे प्रशासन के सभी लोगों ने जनता के सहयोग से, यहाँ के धार्मिक गुरुओं और बाकी लोगों के सहयोग से मैनेज किया है, मुझे संतोष है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको जो ये कह सके कि हमें जब पीक पर हम थे तब भी किसी को ऑक्सीजन बेड हमने डिनाई किया हो। शायद ये देश का अकेला यूटी या अकेला राज्य होगा जहां स्थिति थी। जब शुरू किया था हमने अगस्त और सितंबर में, तो हमारी ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 एलपीएम थी। आज हमारी 56,000 है और जुलाई अंत में 90,000 एलपीएम हमारी कैपेसिटी होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया है और सेहत का जिक्र किसी ने किया। आयुष्मान भारत की तर्ज पर 5 लाख रुपए हर परिवार को सेहत स्कीम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 26 दिसंबर को लॉन्च किया था और कोशिश हो रही है कि ऑन द स्पॉट शिकायतों का निराकरण कैसे किया जा सके, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो। इसे भी मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पाठक जी, शहरी क्षेत्रों में हमारे धीरज गुप्ता, इन लोगों ने अनेक कार्यक्रम किए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की भी शुरुआत बैक टू विलेज में हुई थी और लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। मेहता जी ने बताया है कि कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए, मैं उसमें टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी सच है कि अभी भी 25 साल पहले शुरू हुई परियोजना आज पूरी हो रही है। भारत सरकार ने जो मेन ट्रांसमिशन लाइन कश्मीर की सैंक्शन की थी, सैंक्शन में ही उस समय लिखा गया था कि रजौरी या पुंछ में एक 400 केवीए का सब स्टेशन बनना चाहिए। वो आज तक नहीं बना, बनाने की कोशिश हम सब प्रारंभ कर रहे हैं। तो अनेक बातें हैं, हम उन पिछली बातों को भूल करके एक नए जम्मू कश्मीर की तरफ हम सब बढ़ना चाहते हैं। JKIDFC का जिक्र हो गया है, अनेक काम इसके कारण हो सके हैं जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के रूप में थे। 19 में माननीय जितेंद्र सिंह जी के मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के जिलों में किए जा रहे नए इनोवेशन को संकलित कर एक पत्रिका निकाली थी। रियासी में प्रोजेक्ट जल शक्ति, कठुआ में तालाबों का पुनर्जनन, बांदीपुरा में लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जो काम हुए थे उसको प्रकाशित किया गया था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आए हुए अनेक लोग अनेक विषयों पर अपनी अपनी बात रखेंगे। इनोवेशन क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारीगण से मेरा आग्रह होगा कि इसे संकलित करने की जरूरत है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम जम्मू कश्मीर में भी उसे लागू करें, इस पर काम करने की जरूरत है। सुशासन संकल्प और कश्मीर घोषणा 10 मुख्य बातों का जिक्र इसमें किया गया है। प्रभावी तरीके से हम कैसे काम करें इस पर हम सब विचार करेंगे। जितनी बातें हैं मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए। और अभी जो MOU साइन हुआ है, एक कार्यक्रम बनाया है सौरभ भगत जी ने, हमारे GAD ने, चीफ सेक्रेटरी ने, बाकी अधिकारियों ने मिलकर के एक जगह मुझे लगता है कि ज्यादा हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है, वो है रेवेन्यू का फील्ड। मुझे लगता है कि जो हमारे नीचे के अधिकारी उनको कैसे हम बेहतर ढंग से ट्रेन कर सकें। बाकी चीजों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपने बनाया है, मेरा आग्रह होगा कि एक रेवेन्यू का विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में चलाने की जरूरत है। बाकी जो कार्यक्रम बने हैं बहुत अच्छे हैं। मैं फिर से आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं। जो लोग बाहर से आए हैं उनका हृदय से
स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में। कोई आपको तकलीफ हुई हो, हम कोशिश करेंगे कि आपकी देखभाल ठीक से हो, लेकिन कोशिश के बावजूद भी कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं। मुझे लगता है कि वो मंशा हम लोगों की नहीं है, लेकिन किसी को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे, हमारे किसी अधिकारी को आप कह सकते हैं, अविलंब उसे दूर करने की हम सब कोशिश करेंगे। मैं फिर से जितेंद्र सिंह जी को, संजय सिंह जी को, उस पूरे विभाग को ये कार्यक्रम अपने श्रीनगर में आयोजित किया, इससे हम लाभ लेना चाहते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात में ही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। आपके प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now I take immense pleasure in introducing and welcoming Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State for the Ministry of Development of Northeastern Region and Prime Minister's Office, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space. Sir is a respected parliamentarian and an institution builder par excellence. Known for high integrity, caliber, clean image and selfless service to society, Sir has led the campaign for greater ethics and accountability in public administration and sweeping reforms in grievance redressal. We welcome you, sir, and request you to kindly share your valuable insights with us.